اب میں بات شروع کرتا ہوں۔ اور کل اور پرسوں تقریباً بورڈ ہی پر باتیں ہوئی ہیں اور کتاب کی عبارت کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، اور اس کی تطبیق جو بورڈ پر بات لکھائی گئی تھی اور کتاب کی عبارت، ان دونوں کی تطبیق نہیں ہوئی تھی، تو میں اس کو آج کتاب کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کتاب کی طرف پہلے آتے ہیں، اور پھر آپ حضرات کاپی میں جو نوٹ کیے ہوں گے اس کو سامنے رکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پوتیاں صلبی بیٹیوں کی طرح ہیں، البتہ بیٹیوں کے 3 احوال ہیں اور پوتیوں کے 6 احوال ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ 6، النصف للواحدة، ایک پوتی کے لیے نصف ہے، اور میں نے لکھایا تھا جبکہ بیٹا نہ ہو بیٹی نہ ہو اور پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا۔ والثلثان للاثنتين فصاعدة، دو سے زیادہ، فصاعدة دو سے زیادہ، دو سے زیادہ پوتیوں کے لیے ثلثان ہے، عند عدم بنات الصلبی، صلبی بیٹیوں کی غیر موجودگی میں۔ اور بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، بیٹا کی بات چوتھی لائن میں موجود ہے۔ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، جو چوتھی لائن میں ہے وہ اوپر بھی ملحوظ ہے۔ تیسری حالت، وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، اگر بیٹا نہ ہو، وہ میں نے لکھایا تھا، اور بیٹی ایک ہو، بیٹا نہ ہو، میت کو بیٹا نہ ہو اور بیٹی ایک ہو تو چھٹا حصہ ملے گا، تکملۃ للثلثین، ثلثان کی تکمیل کرتے ہوئے۔ ثلثان کی تکمیل والی بات میں کل بتلا چکا ہوں۔ چوتھی حالت، ولا یرثن مع الصلبیتین، 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں وارث نہیں ہوں گی، چونکہ ثلثان جو فروع مؤنث کا ٹوٹل حصہ ہے وہ 2 بیٹیوں نے لے لیا تو پوتیوں کے لیے نہیں بچے گا اور وہ محجوب ہو جائیں گی۔ ولا یرثن مع الصلبیتین۔ اور 5ویں حالت، الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، مگر یہ کہ پوتیوں کی محاذات میں یا پوتیوں سے نیچے کوئی لڑکا ہو کہ وہ لڑکا ان پوتیوں کو، وہ لڑکا یا تو پوتا ہے یا پر پوتا ہے یا لکڑ پوتا ہے، تو یہ لڑکا یا تو پوتا ہے یا پر پوتا ہے یا لکڑ پوتا ہے، یہ ان پوتیوں کو جو محجوب ہونے والی تھیں اس کو اسبا بنا دے گا۔ فیعصبہن، تو یہ لڑکا ان سب پوتیوں کو اسبا بنا دے گا۔ والباقی، اور باقی جو ہے، باقی سے مراد یہ ہے 2 بیٹیوں کو دینے کے بعد بچا ہوا، 2 بیٹیوں کو دینے کے بعد بچا ہوا جو پوتے اور پوتیوں کی طرف آیا ہے، یہ ہے باقی سے مراد۔ تو 2 بیٹیوں کو ثلثان مل گیا اور کوئی دوسرے نہیں ہیں، پوتے پوتیاں ہی ہیں، تو باقی سے مراد 1/3 ہے، باقی سے مراد 1/3 ہے، چونکہ ثلثان 2 بیٹی کو گیا تو باقی 1/3 حصہ بچ گیا، تو اس لیے یہ باقی جو 1/3 ہے ان کے درمیان، یعنی پوتے پوتیوں کے درمیان، اس غلام اور اس کے محاذات کی پوتی کے درمیان یا اس سے اوپر کی پوتی کے درمیان جو محجوب ہو رہی تھیں، غلام کے محاذات کی پوتیاں اور اس سے اوپر والی پوتیاں جو محجوب ہو رہی تھیں، وہ سب آپس میں بانٹ لیں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے۔ یہ ہے 5ویں حالت الا سے۔ 6ٹھی حالت، وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں ساقط ہو جائیں گی۔ وہ سب وضاحت بورڈ پر ہو چکی ہے اور آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہے۔ اب وہ جو نقشہ میں نے بنایا تھا، اب اس نقشے کو آپ سامنے رکھیے اور اس عبارت ثلاثہ بنات ابن بعضہن اسفل من بعض، اگر چھوڑا 3 بیٹیوں کو بیٹے کی
सलासा बनाते इब्न, बेटे की 3 बेटियों को। अब मैंने जो है जैद का इंतकाल हुआ था और उसके 3 बेटे थे, और हर बेटे के सिलसिले में नीचे बनात का तस्करा आया था। फरीक अव्वल, जैद के 3 बेटे में एक बेटा, पहला फरीक, दूसरा बेटा, दूसरा फरीक, तीसरा बेटा, तीसरा फरीक। तो आप कापी देख रहे होंगे, पहले बेटे फरीक अव्वल के नीचे बनात का जो सिलसिला है, यानी कि बतने दोम में बिन्त है एक, बतने सोम में है और बतने चहारुम में है एक एक बिन्त। तो वो है सलासा बनात इब्न से मुराद बेटे की 3 बेटियां। तो 3 बेटियां ये मुहाजात में नहीं है, बल्कि बतनन बादा बतनिन वाली बात है। इसी को उन्होंने फरमाया बाज़ुहुन्न अस्फलु मिन बाज़, ये तीनों बेटियां मुहाजात की नहीं हैं, बल्कि बाज बाज से नीचे हैं। बतने दोम में एक, बतने सोम में एक, बतने चहारुम में एक। वसलासा बनाते इब्ने इब्निन आखर, और दूसरे बेटे के बेटे की 3 बेटियां। तो फरीक दोम में भी देखे आप, जैद का दूसरा बेटा फरीक दोम, उसको, उस बेटे को बेटा, फिर बेटे की यानी जैद के पोते की 3 बेटियां, यानी कि बतने सोम में पहली बेटी, बतने चहारुम में दूसरी, बतने पंजुम में तीसरी। बाज़ुहुन्न अस्फलु मिन बाज़, बाज बाज से नीचे हैं। वसलासा बनाते इब्ने इब्ने इब्निन आखर, बाज़ुहुन्न अस्फलु मिन बाज़ बिहाज़िहि सूरह, और 3 और दूसरे बेटे जो तीसरा बेटा है, तो दूसरे बेटे यानी दूसरा जो है ये उमुम वाले माने में है कि ये एक बेटा, ये उसके अलावा बेटा, उसके अलावा में दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है। तो बहरहाल दूसरे से यहाँ मुराद तीसरा है। तीसरे बेटे के बेटे की 3 बेटियां, बाज़ुहुन्न अस्फलु मिन बाज़, ये बेटियां आपस में एक दूसरे से नीचे हैं। तो यहाँ पर फरीक़े सोम में जैद के तीसरे बेटे में जैद के परपोते की 3 बेटियां, यानी बतने चहारुम में पहली बेटी है, बतने अव्वल में बेटा है मरहूम, बतने दोम में बेटा है मरहूम, बतने सोम में बेटा है मरहूम, बतने चहारुम में बेटी का आगाज है। तो बतने चहारुम में एक बिन्त है, बतने पंजुम में एक बिन्त है, और बतने शशुम में एक बिन्त है। अब बाज़ुहुन्न अस्फलु मिन बाज़, बाज बाज से नीचे है, मुहाजात में नहीं है। बिहाज़िहि सूरह, इस सूरत के साथ। अब यहाँ पर जो है देखें आप नक्शा है, तो ये नक्शा भी वाज़ेह ही है। जैद का इंतकाल हुआ है, अव्वल फरीक़े दोम बकर है, फरीक़े सोम खालिद है, और यहाँ पर देखें कि अम्र वाले फरीक में बिन्त जो है वो बतने दोम में है एक, बतने सोम में, बतने चारुम में, और फरीक़े सानी जो है बकर है, वहाँ पर लड़की की शुरुआत बतने सोम, फिर बतने चहारुम, फिर बतने पंजुम। और फरीक़े सालिस में देख लें खालिद, इसमें जो बिन्त का आगाज हो रहा है 1 2 3 4, बतने चहारुम से आगाज हो रहा है। बतने चहारुम, बतने पंजुम, बतने शशुम, बिन्त बिन्त बिन्त, ये आप देख रहे हैं। यही मैंने बनाया था कल नक्शा। अब इसमें नक्शे में गौर करें, अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल। अब इसको गौर से देखें आप, मेरा बयान क्या हुआ और ये जो सामने किताब में नक्शा है बिल्कुल बराबर है। तो फरीक़ अव्वल यानी इस नक्शे में अम्र है, और मैंने कुछ और लिखाया था नाम। तो उस फरीक़ की उलिया यानी जैद के पहले वाले बेटे वाले सिलसिले में जो उलिया है, ऊपर वाली बेटी जो कि बतने दोम में है, और मैंने कुछ नाम भी दिया था क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे वो मिटा दिया गया है, तो वो बहरहाल आपके पास नाम मौजूद है। तो फरीक़ अव्वल की जो उलिया है, ऊपर वाली बेटी जो बतने दोम में है, ला युवाज़ीहा अहदुन, उसके मुहाजात में कोई नहीं है, वो तन्हा है। उस बतने दोम में वो बेटी तन्हा है, ला युवाज़ीहा अहदुन। वल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़ीहल उलिया मिनल फरीक़िस सानी,
फरीक़ अव्वल की वस्ता यानी कि जैद के जो पहले बेटे के सिलसिले में जो दूसरी बेटी है वस्ता, फरीक़ अव्वल की वस्ता, उसके मुकाबले में उस बतन में, बतन सोम में एक बेटी और आ गई, अल उलिया मिनल फरीक़ सानी, फरीक़ सानी की उलिया आ गई। आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है फरीक़ अव्वल में जो बीच वाली बिन्त है उसमें लिखा हुआ अल वुस्ता मिनल फरीक़ अव्वल, और उसके मुहाज़ात में उसी बतन में उसके बाजू जो बिन्त है अल उलिया मिनल फरीक़ सानी। तो फरीक़ अव्वल की वुस्ता और फरीक़ सानी की उलिया ये मुहाज़ात में। ये तो ये इतना हो गया। बतने के बाद बतने दोम से शुरुआत हुई, बतने सोम में 2 बेटियां हैं और बतने चहारुम में 3 बेटियां हैं। वस्सुफला मिनल फरीक़िल अव्वल, और फरीक़ अव्वल की सुफला तो वाज़िह अल वुस्ता मिनल फरीक़ सानी, इसके मुहाज़ात में फरीक़ सानी की वुस्ता है, वल उलिया मिनल फरीक़ सालिस, और फरीक़ सालिस की उलिया है। तो तीनों हैं, यानी तीनों फरीक़ में बेटियां हैं। फरीक़ अव्वल की सुफला, फरीक़ सानी की वुस्ता, फरीक़ सालिस की उलिया, ये सब जो हैं ये आपस में मुहाज़ात में है। फरीक़ अव्वल की सुफला तो हो चुकी, उसका मामला ख़त्म हो गया। वस्सुफला मिनल फरीक़ सानी, फरीक़ सानी की वुस्ता तक आया था। अब फरीक़ सानी की सुफला को देखें तो उसके मुहाज़ात में कौन है, अल वुस्ता मिनल फरीक़ सालिस, फरीक़ सालिस की वुस्ता है दरमियान वाली, ये भी वाज़ेह है। वस्सुफला मिनल फरीक़ सालिस, और फरीक़ सालिस की सुफला, या आप देखें तीसरे फरीक़, तीसरा बेटा जो जैद है उसके बिल्कुल नीचे, आखिरी नीचे देखें कि तनहा बेटी है वहां पर, फरीक़ सालिस की सुफला नीचे वाली, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। इज़ा अरफ़्त हाज़ा, जब तुमने इसको पहचान लिया, इस तरह जो है इस नक्शे को समझ लिया, फ़नक़ूल, तो हम कहेंगे, यानी अब हिस्सा देने की बात है। ये बात भी कल हो चुकी है कि इसको क्या हिस्सा मिलेगा, ये बातें जो है आ चुकी हैं। अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़ु, बात आई थी कि फरीक़ अव्वल की उलिया, फरीक़ अव्वल की उलिया को निस्फ़ मिलेगा, वो आपके सामने मौजूद है, निस्फ़ लिखा हुआ भी मौजूद है, तो उसको निस्फ़ मिलेगा चूंकि उसके मुहाज़ात में कोई नहीं है, और जितने लड़के हैं सब मर चुके हैं पहले ही, जैद से भी पहले मर चुके हैं। वलिल वुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल मअ मन युवाज़िहा अस्सुदुसु तकमिलतन लिस्सुलुसैन, फरीक़ अव्वल की वुस्ता, उसके साथ जो उस लड़की के साथ या उस पोती के साथ जो उसके मुहाज़ात में है, जो उसके मद्दे मुकाबिल है, यानी कि फरीक़ दोम की सुफला, फरीक़ दोम की सुफला, वलिल वुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल मअ मन युवाज़िहा, फरीक़ अव्वल की वुस्ता और फरीक़ दोम की, मैंने क्या कह दिया, सुफला कह दिया, शायद वो गलत हो गया, फरीक़ दोम की उलिया, फरीक़ अव्वल की वुस्ता और फरीक़ दोम की उलिया, ये आपस में मुहाज़ात में है। तो इन दोनों को क्या मिल जाएगा, अस्सुदुस, छठा हिस्सा मुश्तरक मिल जाएगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। तो ये आप आसानी से अपने नक्शे में देख सकते हैं कि सुदुस मुश्तरक जो है लिखा गया है बतने सोम में, और इसलिए सुदुस मुश्तरक है, यानी मुश्तरक इसलिए है कि दोनों फरीक़ अव्वल की वुस्ता और फरीक़ दोम की उलिया ये मय्यित से बराबर दर्जे की क़राबत रख रही हैं, इसलिए मुश्तरक हो जाएगा। और सुदुस ही क्यों मिलेगा, उससे कम बेश क्यों नहीं होगा, तो इसलिए सुदुस मिलेगा कि फुरूए मुअन्नस का हिस्सा सुलुसान है, उससे आगे नहीं जाता है, तो निस्फ ले चुकी हैं फरीक़ अव्वल की उलिया। तो जब निस्फ ले चुकी फरीक़ अव्वल की उलिया, तो अब सुलुसान तक पहुंचने के लिए सुदुस ही बाकी रह गया है, सुलुसान तक पहुंचने के लिए सुदुस ही बाकी रह गया है, लिहाजा सुदुस ही मिल जाएगा फरीक़ अव्वल की वुस्ता
اور فریق ثانی کی اولیاء کے درمیان مشترکہ۔ اب ثلثان جو فروع مؤنث کا حصہ ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ جب ثلثان والا معاملہ ختم ہو گیا تو اب جو مزید نیچے کی لڑکیاں بچ گئی ہیں، یعنی اب تک جو ہے 3 لڑکیوں کو ملا 9 لڑکیوں میں سے 9 لڑکیاں جو ہیں جو پوتیاں پر پوتیاں لکڑ پوتیاں ہیں تو 9 ہیں، ہر فریق میں 3 ہیں، تو 3 فریق میں 9 ہو گئی، ہر فریق میں 3 تو تینوں فریق ملا کے 9 ہو گئی، تو ملا کتنے کو؟ 3 کو، باقی 6 جو ہیں 6 پوتیاں محجوب ہو گئیں۔ ولا شیء للسفلیاتی، اور نیچے والی مزید جو 6 بچ گئی ہیں ان سب کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثلثان جو فروع مؤنث کا حصہ ہے وہ ختم ہو گیا اوپر ہی۔ الا ان یکون معهن غلام، مگر یہ کہ ان کے ساتھ، ان سفلیات کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو وہ لڑکا اسبہ بنا دے گا۔ یعصبهن من كانت بحذائه، تو لڑکا اسبہ کس کو بنائے گا؟ وہ لڑکا بھی کوئی پوتا ہی ہے یا پر پوتا ہے یا لکڑ پوتا ہے یا سکڑ پوتا ہے، تو بہرحال کوئی بھی لڑکا ہے تو جس بطن میں وہ لڑکا ہے اس بطن میں، یعنی اس کی محاذات میں جو بھی پوتی ہے وہ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ اس لڑکے کے ساتھ وہ لڑکیاں جو اسی لڑکے کے بطن میں ہیں، لڑکے کی محاذات میں ہیں، وہ لڑکیاں لڑکے کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے